elements of symmetry in a cube. First is center of symmetry. If you make, if you if you check the body center, that is what? Center of symmetry. Why? From that point, all the positions, if you draw opposite lines in opposite direction of equal length, then you will find it will meet identical points. So that is one center of symmetry. How many center of symmetry are there? One center of symmetry is there. If you check line of symmetry, or axis of symmetry, then see, if I draw a line joining face centers, and if you rotate by 90 degree, 360 upon 4, you already remember what is axis symmetry. If a molecule rotated by 360 by n and it gives same orientation, then it is known as n-fold axis of symmetry. क्या बोलते हैं इसको? N-fold axis of symmetry. तो कितने एंगल से घुमाएंगे इसको? 90 डिग्री से. ऐसे कितने एक्सिस होंगे बताइए? बताइए. What is axis of symmetry? If a molecule is rotated by 360 upon n, then it gives the same orientation. If you check, if I join opposite face, then you will get one line of symmetry, that is fourfold axis symmetry. That should be what? 6 upon 2, 3. 3 fourfold axis of symmetry. If you want me to define the axis of symmetry or line of symmetry, if an object or molecule is rotated by 360 upon n about an axis and gives
same orientation. The axis is named as n-fold axis of symmetry. So how many four-fold axis of symmetry are there? Three-fold axis of symmetry are there. If you join the opposite edge centers, and you rotate this, the angle should be 180 degree. Now, how many axis of symmetry are there? Now, four-fold axis of symmetry, also known as tetrad axis of symmetry. बताइए कितने होंगे? What we are doing here? We are joining edge centers. Very good. How many edge centers we have? 12. And we are joining opposite. It should be what? 12 upon 2. 6. 6 two-fold axis of symmetry or dyad axis of symmetry. Third, if you join opposite corner along the body diagonal, that should be 360 upon 3, 120 degree. And we are joining opposite corners, 8 by 2, that is 4, three-fold axis of symmetry और triad axis of symmetry. तो आप बोलेंगे इन सब का यूज क्या है सर सॉलिड स्टेट में? सॉलिड स्टेट में यूज ये है कि वो बोलेंगे इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड हमने सारे पार्टिकल को रिमूव कर दिया है. तो नया फॉर्मूला बताइए. ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे. तो आपको एक्सेस ही नहीं पता होगा तो आप रिमूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो कितने हो गए बताइए? 3-4 कितने मिले? 4. सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने मिले? 1. नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री. पीओएस का डेफिनेशन क्या होता है? इट विल, बोलिए. It will cut the molecule into two equal parts, one part being the mirror image of other. और हाँ सर. वो 120 डिग्री कैसे निकला? वो सोचो तुम, तुम्हारा काम है. सोच सकते हो ना श्रेयस? हाँ सोचना ना, क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास, तुम रूबिक्स क्यूब खेलते हो? नहीं, मतलब पहले. हाँ, घर में होगा गलती से. हाँ तो चेक कर लेना. हाँ. ठीक है. हाँ, ये कौन सी लाइन है? इसे रिपीट कर दी. कौन सी लाइन है? बॉडी डायगोनल. हाँ, थर्ड. नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो क्वेश्चन क्या रहेगा श्रेयस? क्वेश्चन ये सब सिमेट्री नोट नहीं पूछते. टफ क्वेश्चन हो क्या बोलेंगे कि along one fourfold axisymmetry in all the unit cell all particles are missing. If I talk about face centered cubic lattice, तो एक पार्टिकल फेस से मिसिंग होगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मिसिंग होगा,
एक फेस सेंटर्ड से मिसिंग होगा। तो नया फॉर्मूला बताओ। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल अराइज फ्रॉम सच कॉन्सेप्ट। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें if you take join this, नाम देने के लिए है। अगर ऐसे प्लेन पास कराऊंगा तो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसे कितने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे बताइए। ऐसे इस क्यूब के अंदर कितने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे? 3। भाई क्यों? बोलो दो, बोलिए 3 क्यों? फटाक से बोलो। एक्स वाई प्लेन है ये, सिंपल। तो परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन होगा, सिमिलरिटी जेड एक्स प्लेन होगा, है ना। If you join this line now, ये वाला प्लेन, यहाँ पे कितने बताया आपने? 6/2, दैट इज 3 लिख सकते हैं। तो फिर सिंपली क्या लिख सकते हैं? थ्री ही लिखिए, सिंपल, कॉम्प्लिकेट क्या करना है। 3, ऐसे 3 मिलेंगे। और इसमें सेकंड वाले में कितने फेस डायगोनल इन्वॉल्व किया हमने? 2 फेस डायगोनल इन्वॉल्व किया, अपोजिट फेस वाले। यहाँ पे कितने मिलेंगे? 6। 2। 2 कैसे? 6 ना। आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, और फ्रंट वाले बना सकते हैं। कोई भी दो अपोजिट फेस का पैरेलल फेस डायगोनल ले लीजिए और बना लीजिए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? 2 ही रहेंगे ना उसमें डायगोनल। 2 कैसे रहेंगे? एक क्यूब में कितने हैं पूछ रहा है बेटा। ये तुमने रुको, ये तुमने एक डायगोनल लिया, ये एक डायगोनल लिया, एक प्लेन बना। बट इफ आई टेक दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल, तो प्लेन बदल जाएगा ना। अच्छा, So there are 12 face diagonals, you'll get 6 planes like this. टोटल कितने हुए बताइए? 1 center of symmetry, 3, 6, 4, 3 plus 6, कितने हो रहे टोटल? 23. So 23 elements of symmetry are present in cube. Again, ये सब कभी नहीं पूछेंगे, कोई घटिया क्वेश्चन को पूछ भी लेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन का मतलब वही हुआ। If I pass along one 3-fold axis of symmetry, all the particles are missing in a FCC. तो FCC में कॉर्नर मिसिंग होगा, 2 टेट्राहेड्रल बॉर्ड मिसिंग होंगे, एक ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड मिसिंग होगा। उनके पार्टिकल्स को हटाना पड़ेगा नया फॉर्मूला निकालने के लिए। क्लियर है सबको? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ फॉरेस्टेड का। हाँ एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। लास्ट वाला तो भाग 1 में कोई डाउट है बेटा? डिस्कस किया था हमने कुछ कुछ शायद। वन में कोई डाउट है श्रेयस? तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है डायग्राम वाले।
और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़े श्रेयस? हाँ सर। वो पढ़ लो बेटा, एक बार और पढ़ लेना, एंडिंग में पढ़ते रहना पड़ेगा रेगुलरली, एग्जाम्पल लोग भूल जाते हैं। मैं यहाँ तो डिस्कशन किया था 33 से। The following sentence statement is not true about NaCl structure. Cl minus R in FCC arrangement सही है, 4 है। Na plus has coordinate number 4 गलत हो गया। Cl minus coordinate number 6, each unit cell has 4 unit cells सही है। Solid A plus B, B minus as below, A plus ion occupy half octet wide side in structure. The formula of solid is। अच्छा B ऐसा है, तो B ऐसा है मतलब B कहाँ कहाँ है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो B कितने हैं फिर? 4। तो क्वेश्चन देने का तरीका देखो, बी ऐसा है, या बोल देगा बी एफसीसी अरेंजमेंट फॉलो कर रहा है तो बी 4 हो जाएगा। ऑक्टेटल कितने होते हैं? 4। ए कितना हो जाएगा? 2। फॉर्मूला विल बी व्हाट? ए बी 2। फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड गिवन बिलो, इफ द लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट a plus and b minus, okay, लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट a plus and b minus occupy all tetrahedral word। ऑल का मतलब 8। एट। ही है, एफसीसी ही है, तो बी 8 हो गया, ए 4 हो गया, ए बी 2। देखो 36, a plus b रेडाई 180 और 187 द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे क्या हम लोग, आर ए प्लस अपॉन आर बी माइनस निकाल लेंगे। डेफिनेटली अराउंड 0.9 के आसपास आएगा, है ना? एनी डाउट? नो सर। ऐसा आएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा? CaCl टाइप में 0.732 से ज्यादा और 1 से कम, टिपिकल वर्ड था वो। If the value of ionic radius is 0.52, it is in between what? 0.414 and 0.732। 0.414 इक्वल और उससे ज्यादा होना चाहिए, 0.732 से कम होना चाहिए। कौन सा वर्ड हो गया? ऑक्टेटल वर्ड। ये मैक्सिमम, देखो ये प्यारा क्वेश्चन जो आपको मैंने बार बार स्ट्रेस दिया था, मैक्सिमम रेडियस ऑफ स्फीयर दैट कैन बी फिटेड इन द टेट्राहेड्रल वर्ड ऑफ क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। मतलब हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो आंसर क्या होगा? याद है कि नहीं बताओ? हाँ। ये बताया था मैंने अच्छे से, जबकि ये होता मिनिमम है। टेट्राहेड्रल वर्ड का रेंज क्या है बेटा? R upon R should be less than 0.414 and greater than equal to 0.225। जो मिनिमम वैल्यू है वही मैक्सिमम होती है विदाउट डिस्टर्बिंग में। डिस्टर्ब कर देंगे तब तो हम बड़ा कर सकते हैं। फॉर एनी क्रिस्टल जनरल फॉर्मूला कॉर्डिनेशन नंबर 6 बोल ही दिया, तो क्या आंसर आएगा? ऑक्टेटल वर्ड। A unit cell of sodium chloride has 4 formula unit, 4 formula unit 0.56। 0.56 क्या दे दिया? A 4 फॉर्मूला में Z दे दिया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Z into m upon n into a cube। A given, Z given, M given, M you know सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। डिफेक्ट्स, which defect cause decrease in density of crystal। अभी सब सवाल हो ही जाएंगे। एक्सरसाइज 2 भी हो गया, नहीं सर। तो 2-3 कर लीजिएगा इस वीक में, है ना? नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हाँ हैं। सर। कार्बोक्सिलिक एमाइड डेरिवेटिव कब करोगे? बुकलेट का नहीं सर, अब तो करने वाले थे, आपने बोला था उसका ये हफ्ता एग्जाम है। क्या क्या क्या? उसका ये हफ्ता एग्जाम है सर, संडे को। ठीक है, ठीक। आप लोग पढ़े एक बार, पढ़े हैं कि नहीं बताइए? अभी तक नहीं, मतलब तभी एक बार पढ़ा था वीक में पढ़ने के लिए कहा था सर। कीटोन एल्डिहाइड का मतलब पढ़ा था बात। नहीं, जब मेरा क्लास नहीं हुआ तो तब दिया था मैंने पढ़ने के लिए ना उस वीक में। हाँ सर, टाइम हो गया लेकिन उसको तो आप एक बार पढ़िएगा, देन आई विल डिस्कस ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है? हाँ पढ़िएगा। अब देखो, अब यही तो गड़बड़ है ना, पूरा वीक में फिर करना क्या था? कीटोन एल्डिहाइड की बुकलेट सॉल्व करना मतलब क्या है? देखो, जितना हम अपने को समझेंगे ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम कभी नहीं मिलने वाला। जब तक कीटोन एल्डिहाइड चला, कौन सी बुकलेट करवाई मैंने आपको? कौन सी बुकलेट कराई 1 मंथ में? कौन सी बुकलेट किया आपने एल्डिहाइड कीटोन की? कोई बुकलेट नहीं की।
वही जो नोट्स पढ़ा है मैंने 4 लाइन पढ़ना था घर पे, अब उसको वही आपको बर्डन लगेगी तो आर्यन इट्स बैड ना। हाँ आई सर। डिडंट वांट टू लूज। तो अगर मैं पढ़ा नहीं रहा था तो मैं सोचा कि चलो पढ़ तो लो आप। एसिड डेरिवेटिव में 90% चीजें पुरानी ही है। उसका भी मैंने अर्ट आइस्टार्ट रिएक्शन बता दिया, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, सब एक रिएक्शन बतानी है। विल डिस्कस इट ऑन वेडनेसडे। देखो कहने के लिए तो फिर हम सब चीज पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। फिर आप क्या एफर्ट डाल रहे हैं? कोई एफर्ट नहीं डाल। आपको एक अच्छा नोट्स मिल गया, उससे भी आप नहीं पढ़ पाए अगर इतने दिनों में, अगर देखा जाए तो उस वीक का ही टारगेट था सिर्फ, और उस वीक के बाद भी काफी टाइम मिला पढ़ने के लिए आपको। इफ यू डेंट स्टडी दैट तो फिर आपको कभी टाइम नहीं मिलने वाला, नेवर यू विल गेट टाइम। अब हमेशा यही बोलते रहेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, यही बोलते रहेंगे और टाइम निकल जाएगी। तो टाइम निकालने के लिए खुद से आगे आना पड़ेगा। मैंने कहा था पढ़ाऊंगा, तो ये जो सेंटेंस मैंने कह दिया, यही गुनाह कर दिया ना, मुझे नहीं कहना चाहिए था। इस चक्कर में लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, मैं जानता हूँ ना 90 लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ाना है ही नहीं ज्यादा कुछ, आप देखिएगा मेरे सामने। देखिए नेक्स्ट है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सभी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, सब ऑलरेडी पता है आपको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिट, मोलैरिटी, मोलैलिटी सब पता है आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. Solubility is expressed in terms of gram per liter or mole per liter. अपने को स्ट्रांग बनाओ, लास्ट मोमेंट में अभी अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, देखिए सॉलिड को हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। और अगर मैं उसका वाटर हटा रहा हूँ, क्रिस्टलाइज कर रहा हूँ, तो सॉलिड बन जाएगा उससे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी व्हाट, सेम। वो क्या बन जाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। And equilibrium, the rate of forward and backward change becomes equal. The amount of solid dissolved till equilibrium is known as solubility. Factors affecting solubility, ये सब कुछ नहीं है, सबका कुछ दम नहीं है, सॉल्विंग में सब कुछ नहीं आता, बस वो कहने के लिए है। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिखता हूँ सॉल्युबिलिटी का। आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा सॉल्ट का। The solubility of a solute in a particular solvent at a given temperature is equivalent to maximum number of grams, मतलब ग्राम्स की बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, of solute necessary to saturate 100 gram of that solvent। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है कि अमाइंस भी आ रहा है टेस्ट में? दोनों बोलो। दोनों दोनों सर। दोनों आ रहा है, ठीक। देखो अमाइंस तो मैंने पूरा ही पढ़ लिया है, डाइल्यूमिक सॉल्ट पढ़ लिया है, हाँ पढ़ा डाइल्यूमिक सॉल्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ लिया था। हाँ, सर।
प्रिपरेशन मेथड, नाइट्रो सारे का रिडक्शन, नाइट्रो हो, साइनाइड हो, सबका रिडक्शन पढ़ लिया। प्रिपरेशन वैसे डन है, सिर्फ एक रिएक्शन बतानी है। हाँ सर। कार्बिलमाइन टेस्ट पढ़ लिया था, तो 3-4 रिएक्शन से नोट से पढ़ने थे, उसमें क्या झंझट थी। ठीक है। The solubility of a solute in a particular solvent at a given temperature is equivalent to the maximum number of grams of solute necessary to saturate 100 gram of that solvent at that temperature. ये आपको इसी फॉर्मेट में आपको जब आप गूगल करेंगे सॉल्युबिलिटी किसी का तो आपको मिलेगा। तो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। बट आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर में, या व्हाट इज ग्राम पर लीटर, strength, what is mole per liter, molarity. Solubility of solid and liquid, same situation जो हमने बताया अभी। Factors affecting solubility, nature of solid and liquid. Solubility of solid depend on the nature of both solid and liquid. Polar solids are more soluble in polar solvent, and covalent solids are more soluble in non-polar solvent. Temperature, A solid aqueous delta H, ln K2 upon K1 minus delta H upon R, 1 upon T2 as T1. Delta is solubility. For solubility of solid and liquid is positive, so solubility of solid increases with increase in temperature. 3 एक्सेप्शन देखो आप Na2SO4 का, कि पहले क्या हो रहा है, स्लाइटली बढ़ रहा है Na2SO4 डॉट NH2O का, फिर आपका कम हो रहा है। इस जगह पे मैं आपको एक ग्राफ ऐड करूंगा। ओके, ये 10th या 9th ICSE के बोर्ड में था। देखिए देखिए ये दो ग्राफ श्रेयस जान रखिए, 9th ICSE बोर्ड का है पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखो, सोडियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखो, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सब इंक्रीज कर रहे हैं, पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट किसका है, सोडियम क्लोराइड का स्लाइटली ज्यादा है, स्लोप है इसका। कैल्शियम सल्फेट का फिर से डिक्रीज हो रहा है। Na2SO4 डॉट NH2O पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, क्यों? क्योंकि बिफोर 32.8 डिग्री exist as what? Before 32.8 degree exists as hydrated. After Dehydrated. 32.8 it is exists as anhydrous. जो भी ICSE के पढ़े उनको ये ग्राफ पता होगा। ठीक है, तो ये सॉलिड का लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी का ग्राफ है। प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब
पूरा जो डिस्कशन है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल इस पे आते हैं जनरली। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एक गैस है, वाटर में डिसॉल्व किया, मान लो एक्वस बना, डेल्टा सॉल्यूशन इज लेस देन 0, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड, पोलर गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वेरी लॉजिकल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एज इट डिसोसिएशन प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक। तो अगर आप हीट करोगे तो गैस लिक्विड से बाहर निकल जाएगी। हीट करोगे मतलब क्या, वो हीट सप्लाई करना। तो लोअर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, हायर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। जो न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर पे रिलेटेड वो इस पे आएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, एग्जांपल आपका कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, उसमें उसका जब आप कैप ओपन करते हो तो गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब आप कैप ओपन करते हो गैस बाहर निकल जाती है, तो गैस डिजोल्व रहती है, तो गैस उसमें डिजोल्व रहता है हाई प्रेशर पे, पर बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर कम हो जाती है, इसलिए गैस बाहर निकल जाती है। तो वही लिखा है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हेनरीज लॉ, solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas at a given temperature। कहता है लॉ, देखिए इस लॉ को मैं और थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। solubility is proportional to what, pressure, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे solubility उतनी बढ़ेगी। P का यूनिट क्या होगा, ATM, molecular weight, whatever। solubility can be expressed in terms of mass of gas dissolved, molality, mole fraction, किसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर जो यूनिट लिखा है इन्होंने, तो solubility हमने किस फॉर्म में लिया होगा, मोलैरिटी के फॉर्म में लिया होगा। Solubility means what, concentration term, nothing else। ठीक है, इसको थोड़ा और समझाता हूँ, यहाँ से थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। देखिए हेनरीज लॉ को, हेनरी लॉ तो सिंपल स्टेटमेंट है कि सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। पर सीबीएसई बोर्ड या जेई या नीट में और एचएससी बोर्ड, मुझे अभी का चेक करना पड़ेगा, लास्ट का जो बुक था, एचएससी या सीईटी में, इसमें जो मैथमेटिकल फॉर्म था, इसमें था P इक्वल टू KHX और इसमें था S इक्वल टू KP। P is what, pressure of gas over the liquid। सब लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा, वेंसडे को हम लोग एसिड डेरिवेटिव का डिस्कशन कर लेंगे और बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in liquid, very important, I will underline that part also, over or in। और KH डेफिनेटली क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट। इसी पे न्यूमेरिकल आएंगे, इसी फॉर्मूले पे। और स्टेट बोर्ड में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। एस क्या है, solubility in terms of molarity, वही solubility of gas in liquid। जो मोल फ्रैक्शन था वो यहाँ पे क्या था, solubility था, solubility of gas in liquid, but in terms of mole fraction। तो यहाँ पे solubility of gas in liquid in terms of molarity।
P वही है, प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। तो K का यूनिट बदल जाएगा ना, और यहाँ पे ये K क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पे, मोलैरिटी अपॉन एटीएम। इसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पे KH की, एटीएम, बिकॉज मोल फ्रैक्शन को यूनिट होता नहीं है, होगा ना। Henry's constant is nothing but S upon P. Henry's constant here is what, P upon X. X की कोई यूनिट नहीं, P की यूनिट ATM, तो इसका यूनिट क्या होगा, ATM। तो इन दो न्यूमेरिकल पे, दोनों पे अलग अलग न्यूमेरिकल आते हैं। अब बोलेंगे दोनों का अलग अलग लॉ है, यस। हेनरीज लॉ स्टेट बोर्ड का अलग लॉ था, स्टेट बोर्ड में अलग थ्योरी पे न्यूमेरिकल डाला हुआ है, और अलग। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है CBSE वाले बोर्ड में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH कम होगा। दोनों में सॉल्युबिलिटी कम ही होगी, दोनों में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो मैथमेटिकल फॉर्म उनका जस्टिफाई करता है उसको इस तरह से। अब खुद सोचो, फॉर सेम प्रेशर ऑफ गैस, फॉर सेम प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड, KH इंटू एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। KH1 इंटू x1 इक्वल टू KH2 इंटू x2 हो जाएगा। If KH1 is more than KH2, then x1 is more than what, x1 is less than what, x2। KH1 is less than KH2, x1 is more than x2। मान लीजिए ये T2 टेम्परेचर पे है, ये T1 टेम्परेचर पे है, तो विच इज मोर, T2 इज मोर देन T1। अगर x1 ज्यादा है, x1 किस पे है, T1 पे, x2 किस पे है, T2 पे। तो solubility increases, decreases, therefore we prove what, solubility decreases on increase in temperature। सेम ट्रेंड आप वहां पे अपोजिट कर लेंगे। नाउ फिर से इक्वेशन लिखता हूँ, P इक्वल टू KH इंटू एक्स है। x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एंड L क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन x को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, दिस एज Ng प्लस NL क्या हो जाएगा, NL। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इंटू Ng अपॉन NL। 99% न्यूमेरिकल हेनरीज लॉ की चीज पे बनते हैं। क्यों, अब पता कैसे करोगे कि सर x कम है, डायल्यूट सॉल्यूशन कैसे पता करोगे, तो आप देखोगे x इक्वल टू क्या लिखोगे, P अपॉन KH। अब P अपॉन KH अगर बहुत छोटा है मतलब x भी छोटा है, और x छोटा है मतलब डायल्यूट सॉल्यूशन है। So in this way you can handle the problem. Please write it everything in your notebook. Yes. Henry's law.
श्रेयस बुकलेट क्या हो गया एसिड वाला? नहीं सर। तो सॉलिड स्टेट मत करना वेडनेसडे के लिए, ठीक है? कल परसों और आज का सेकंड हाफ मिला के 3 दिन है आपके पास एसिड डेरिवेटिव का रिवाइज करना और सॉल्व करना। will revise the theory and along with you again discuss the question. जिससे नहीं बन पाएगा leave it, read the notes, लेकिन मैं कहूंगा कि हो जाएगा बेटा। only one reaction, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, वही नहीं होगा सर। श्रेयस देखना एक बार, मैं उसको कल के लिए क्यों डिलो करूं। देखो इधर श्रेयस, हाँ सर। सीओएच कैसा ग्रुप है? माइनस आर माइनस आई, मेटा डायरेक्टर। NO2 कहाँ जाएगा? मेटा पे। Br2 कहाँ जाएगा? मेटा पे। बट इसमें फिडल क्राफ्ट होता है क्या? नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में फिडल क्राफ्ट, बोलो, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं नहीं होता। होता। फिडल क्राफ्ट FC का मतलब फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन एसिलेशन नहीं हो सकते। हेलोजनेशन, ओनली वन रिएक्शन इज अननोन, otherwise all the reactions are given to you, बस यही। Carboxylic acids having alpha hydrogen are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus. So red phosphorus plus X2 or PX3 followed by hydrolysis is known as Hell-Vollard-Jelinski reaction या HVZ reaction. HVZ reaction नाम तो बड़ा हाईफाई है पर रिएक्शन कोई दम नहीं। सिंपली हमने अल्फा पढ़ा था हेलोजनेशन कीटोनाइल्डिहाइड का, यहाँ पे अल्फा हेलोजन करा रहे हैं। तो एसिड है, ये अल्फा पोजीशन है, इसका H किससे रिप्लेस हो गया? X से। अब आप बोलेंगे कैसे कराया होगा सर आपने, तो इसकी मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। ये एसिड है, में टॉटोमेरिन करा दो, ठीक श्रेयस, कीटोन एल्डिहाइड जैसा। फिर ये अल्कीन इसको ले लेगा, ऐसे उठा लेगा यहाँ से। फिर यहाँ पे क्या आ गया? X प्लस OH, और क्या निकला था? X माइनस। अल्कीन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट करेगा ना। हाँ तो सर। फाइनल हो गया रिएक्शन। तो वही अगर PX3 ले लेंगे तो पहले वो कन्वर्ट होगा, अगर PX3 ले लेते हैं तो पहले कन्वर्ट होगा वो हैलाइड में, और पूरा प्रोसीजर सेम चलेगा। फाइनली क्या बनेगा? हैलाइड, और फिर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। वाटर दे रहे हैं, हाइड्रो। अब बोलेंगे एक और तरीका से, PX3 लिया आपने, X2 प्लस PX3 मिलकर PX3 बन जाएंगे, तो ये पहले क्या बन जाएंगे? P प्लस X2 में। ये बेटर मेथड है कि हैलाइड बन जाएगा, फिर हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। अगर हमने हैलाइड बना के नहीं किया, ये लिखा मैकेनिज्म, तब भी सही है। बट अगर पहले हैलाइड बनता है, एक्चुअल मैकेनिज्म इज व्हाट, कि P प्लस X2 के प्रेजेंस में पहले यहाँ पे हैलाइड बन जाता है, एसिड हैलाइड बन जाता है, फिर अल्फा सब्स्टिट्यूशन होती है। ये एक बात रिएक्शन है। टी का क्वेश्चन पता है, रिडक्शन ऑफ RCOH
और यूजिंग LiLH4 और B2S6 अल्कोहल पता है, रिएक्शन विद अमोनिया, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट। फिर हीट करने से क्या बन जाता है? अमाइड। और अमाइड में डाल देंगे P4 और 10, तो ये क्या बन जाता है? साइनाइड, है ना। यहाँ का H2 और यहाँ का O निकल जाता है। तो अमाइड से अगर साइनाइड बनानी है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे। फिर भाई देखो यहाँ पे सॉल्ट बना, हीट करने से अमाइड बना, और अमाइड में डाल दो P4 और 10। यहाँ पे थैलिक एसिड है, अमोनिया डाला, दोनों सॉल्ट बन गए, हीट के अमाइड बना। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर क्या निकल गया? NH3। जैसे वाटर निकलता था, एनहाइड्राइड बनता था, इसको हीट करो तो क्या बनेगा? वाटर निकालते थे, थैलिक एनहाइड बनेगा। और ये क्या बना? थैलिमाइड। इमाइड बना ना। व्हाट इज इमाइड? ये इमाइड है। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड और ये थैलिमाइड। किसी भी रिएक्शन में कोई दम नहीं है। ये सारे सिमिलर टू अल्कोहल रिएक्शन, OH कन्वर्टेड टू व्हाट? Cl। एस्टरिफिकेशन ऑलरेडी डन। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, हीट कर देंगे एसिड एसिड को, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। और ये सब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ, GOC। प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन कितना टफ है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या देगा? एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड सब क्या देगा? एसिड। अगर एसिडिक मीडियम में करें तो एसिड देगा, बेसिक मीडियम में करें तो सॉल्ट दे देगा। इग्नाइट रिएजेंट CO2 के साथ हो चुका है, हो चुका है ना। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? एसिड। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? अमाइड। साइड चेन ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? बेंजीन में अगर साइड चेन लगा हुआ है तो क्या मिलता है? एसिड। और सिंस इट इज यूजिंग बेसिक मीडियम, पहले सॉल्ट मिलेगा, उसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिल जाएगा? एसिड। कोई भी बेंजीन। इवन कीटोन को भी एक्सट्रीम कंडीशन में ब्रेक करेंगे तो ये भी एसिड बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एसिड। KNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज करेंगे तो कौन डिग्री से क्या मिल जाएगा? एसिड। हेलो, क्लियर है श्रेयस? हेलो। हाँ सर। और ये एग्जांपल्स बेटा पढ़ना, ये नाम पढ़ना, यही NCERT का टफ पार्ट है, कॉमन नेम। तुम देखो प्रिपरेशन में क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कितनी बार कर चुके हैं? साइड चेन ऑक्सीडेशन कर चुके हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स तो सेम ही है ना, सब हाइड्रोलिसिस है। और CO2 के साथ रिएक्शन हो गया, एसिड्स। एसिड्स हो गया, NCERT अकॉर्डिंग एसिड्स हो गया, JEE के अकॉर्डिंग भी एसिड्स हो गया, बिकॉज उसमें जो भी अननोन रिएक्शंस है वो पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, कैलकुलेट मैक्स, क्या लिखा है? अमाउंट, मास। हाँ, मास ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडर 580 प्रेशर। हाँ, क्वेश्चन करिए फटाक से। अब क्या निकालना है? मास ऑफ N2 निकालना है ना। 90 ग्राम वाटर दे दिया। आपको मैंने क्या कहा कि हमारा सारा न्यूमेरिकल बनेगा बेटा इस लेफ्ट वाले पोर्शन से, राइट से मत बनाना। सिर्फ CET क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में बनाएंगे उससे।
पर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन सारी चीज बनाएंगे। फॉर्मूला कौन सा है? P इक्वल टू KHX। लिखिए नोटबुक पे। लिखा आपने था क्या? सब कुछ लिख लिया था क्या? नहीं हाँ लिखो पहले, लिखो पहले इसको लिखो। इतना ही पार्ट है सर, P इक्वल टू KHX। उसमें डायल्यूट ही आता है। तो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई ने अपना अपना अलग लॉ बना लिया है हेनरी का। P इक्वल टू KHX और X को भी हम क्या लिख देंगे? NG अपॉन NL। न्यूमेरिकल खत्म। बस यूनिट का ध्यान रखिएगा। वो आईसीएससी वाला जो बुक चैप्टर था ना श्रेयस वाफिया, वो मैं चैप्टर आपको शेयर भी कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। वाटर के ऊपर डिस्कशन है, वाटर के ऊपर। उसके बार आप गौर करना। वो पता है आपको सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बार आप गौर कर लेना, रिव्यू कर लेना उसको। ज्यादा नहीं होता चैप्टर में। वही सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर उसको दिया होगा, सैचुरेशन दिया होगा, सोल्युबिलिटी दी होगी, वही सब दिया होगा। इनको जो एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आपको काम आएंगे। तो स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल में के का यूनिट क्या होगा? मोलैरिटी पर एटीएम। सीबीएसई बोर्ड वाले में केएच का यूनिट क्या होगा? एटीएम। बस न्यूमेरिकल खत्म। ओनली HBZ रिएक्शन will be different बेटा आर्यन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में ओनली HBZ। Okay. सर थोड़ा ऊपर कीजिए। हो गया सर। श्रेयस
श्रेयस हाँ है? सर। क्या स्टेटस है एमएस का? वो सर अल्डोल कहने जा रहा हूँ, हो गया। श्रेयस स्लो हो बहुत, श्रेयस वाकई में स्लो हो। श्रेयस सिलेबस खत्म होते होते आपका एमएस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अमाइन तक एटलीस्ट, अमाइंस तक, समझ गए? ओके सबका सर। लेवल 1 कंप्लीट कर डालो एटलीस्ट, हाँ के बाद नेक्स्ट लेवल पे असाइनमेंट मिलेगी या सॉल्विंग करेंगे। आप पहले बुकलेट और एमएस और रिमेनिंग सबको मैं बोलूंगा पहले बुकलेट। सिर्फ तुम्हारा मिशन क्या स्टेटस है तीर्थ? ये एल्डोल वाला पूरा हो गया, सब लेवल और अरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो गए। बेटा जब तक सिलेबस चलेगी, सिलेबस थोड़ा एक्सटेंड होगा ही सबका, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट वीक या 2 वीक ले लीजिए टाइम, 2 वीक में खत्म करिए, 2 वीक बहुत होता है। एटलीस्ट अमाइंस तक पहुंचिए और खत्म करिए उसको, देन तभी हम दूसरा करने के लिए बोलेंगे ना। एमएस नहीं करते रह जाएंगे तो फिर तो थ्योरी सब में क्वेश्चन सब में एक जैसे मिलने वाला है। ये हो गया? हाँ बेटा क्वेश्चन करते हैं फटाक से, क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। जैसे ही हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, केच लिख दिया, हेनरी लॉ से क्वेश्चन आ गया, फट से लिख दिया फॉर्मूला P इक्वल टू KH x। x क्या लिख देंगे? पहले हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कैसे वेरीफाई करोगे x छोटा है? P अपॉन क्या निकाल लोगे? KH निकाल लोगे। नोट्स में लिख दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P अपॉन KH if it is very less, it is dilute solution of gas, so x will be written as what? Ng upon NL। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि P upon KH 5 upon 10 पर 5, बहुत छोटा हुआ, मतलब P इक्वल टू KH इंटू x फॉर्मूला है, x क्या लिखेंगे? Ng अपॉन NL लिख देंगे ना अप्रोक्सीमेटली, और Ng क्या लिखेंगे? मास ऑफ गैस, तो W ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2 अपॉन 90। मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, अब तो बच्चे नहीं रहे। Ng क्या लिखूं? W अपॉन 28, 90 अपॉन 18, यहाँ पे 5 10 पावर 5 इंटू W अपॉन 28 इंटू 5। ठीक है, ये तो थोड़ा टफ सॉल्यूशन है, बड़ा आसान सॉल्यूशन है। क्या आ गया आंसर? ठीक है ना, आ गया आंसर। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है वेपर प्रेशर क्या होती है इक्विलिब्रियम में। इफ यू लीव द लिक्विड, व्हाट विल हैपन? वेपर विल बी जनरेटेड। और क्लेपेरॉन क्लॉसेस इक्वेशन बताया था बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर। वेपर प्रेशर इज व्हाट? इक्विलिब्रियम प्रेशर। आइडल गैस लॉ नहीं लगा सकते इस पे। लिक्विड से गैस बनाते हैं तो हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो डेल्टा एच क्या ग्रेटर देन 0। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ evaporation, the rate of condensation becomes equal. Once the system attains equilibrium, the moles in vapor phase and the liquid becomes constant. The pressure exerted by vapors of a liquid at equilibrium, definition Kp, Kp क्या लिखेंगे? pressure of gas upon 1, तो vapor pressure is nothing but what? Equilibrium constant। क्लियर है ना? हेलो, वेपर प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग कौन सा लॉ लगाते, कौन सा इक्वेशन लगाते थे? वेंट ऑफ इक्वेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड, टू लिक्विड्स एट सेम टेम्परेचर हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर ड्यू टू डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा अगर होगा, सेम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेंगे,
Liquid with weak molecular force of attraction is more volatile. So it is higher vapor, low vapor pressure. Weak अगर है तो high pressure होगा. अगर high intermolecular force होगा, strong intermolecular force होगा, तो break करना bond को मुश्किल होगा, तो उसकी vapor pressure क्या होगी, कम होगी, तो less volatile. On increasing temperature, the equilibrium shift in forward direction so that vapor pressure increases on increasing temperature. Equation कौन सी है ये? Clapeyron Clausius equation. और ये कौन सी इक्वेशन है? तो Van't equation is useful for all the equilibrium reactions, but Clapeyron-Clausius equation is only used for vapor pressure. तो K2 की जगह पे हमने P2 लिख दिया, K1 जगह P1 लिख दिया, because K क्या था? P के बराबर. So we cannot write like this कि P2 vapor pressure upon T2 should be equal to P1 upon T1. ये नहीं लिख सकते. ये कौन सा लॉ है? Gay-Lussac's लॉ. Gay-Lussac's लॉ हम लोग गैस के प्रेशर पे लगा सकते हैं, पर वेपर प्रेशर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इक्विलिब्रियम प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता. ऑन चेंजिंग वॉल्यूम वेपर प्रेशर लिक्विड डज नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम. तो वॉल्यूम कंटेनर का चेंज करने से नहीं होगा. अगर टेम्परेचर फिक्स है तो वेपर प्रेशर भी क्या फिक्स होगी, बिकॉज वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स. ये देखो क्या बनाया, जो जो सर्कल है वो लिक्विड है और डॉट 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 क्या है, वेपर्स. वेपर्स है, तो ए का लिक्विड लिया वेपर बना, बी का लिक्विड लिया वेपर बना. तो वेपर जो बना वो किसे डिनोट किया उन्होंने? पी नॉट ए से डिनोट किया. पी नॉट ए, पी नॉट बी. व्हाट इज पी नॉट ए? वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं वीपी. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर liquid A. P naught B, vapor pressure of pure liquid B. Assuming that B is more volatile, अगर B ज्यादा volatile है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी? B की. तो P naught B is more than what? P naught A. Any doubt? दो लिक्विड है बेटा, अलग अलग रखा है और अब मिक्स नहीं किया, अलग अलग रखा है. अलग अलग रखा तो दोनों प्योर कंपोनेंट है, दोनों अपना अपना प्रेशर लगाएंगे. एक का पी नॉट ए हो गया, एक का पी नॉट बी हो गया. अगर बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो पी नॉट बी विल बी मोर देन पी नॉट ए. अब हमने क्या किया, मिक्स कर दिया दोनों लिक्विड को मिक्स किया. दोनों लिक्विड के कारण प्रेशर जनरेट होगी, दोनों लिक्विड के कारण प्रेशर जनरेट होगी. अब अंडरस्टैंडिंग समझना यहीं पे क्लैरिटी के लिए. देखिए, जब हम एक लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या रहेगा? मान लो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो लिक्विड के सरफेस पे क्या रहेगा? किसके पार्टिकल रहेंगे? बोले सर कितना आसान क्वेश्चन पूछते हो आप. प्योर लिक्विड ए लिया तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर किसके पार्टिकल्स रहेंगे? लिक्विड ए के. तो वेपर्स बनने की टेंडेंसी भी किसकी होगी? लिक्विड ए की ही होगी. फिर अगर हमने लिया प्योर लिक्विड बी लिया तो सरफेस पे क्या रहेगा? लिक्विड बी का पार्टिकल. लेकिन जैसे हमने मिक्स कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर किसका पार्टिकल रहेगा? दोनों का. तो दोनों के वेपर बनेंगे, पर अब मिलाने से सरफेस पे दोनों इंडिविजुअल लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ कि नहीं बताओ? यहाँ पे जो सरफेस है उसमें सिर्फ किसके पार्टिकल्स हैं? एक है. यहाँ पे क्या है, किसके पार्टिकल्स हैं? बी के. पर यहाँ पे किसके पार्टिकल्स हैं?
दोनों के। तो डेफिनेटली इसमें तो सारा लिक्विड इंटरेस्टेड हो सकता है वेपर बनने में सरफेस पे, बी में सारा लिक्विड बन सकता है वेपर, पर ए और बी का मिक्सचर ले लूंगा तो जो वेपर बनेगा उसमें सबका सारा ए तो अवेलेबल है नहीं, कुछ ही अवेलेबल है। तो कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस, concentration of A and B on the surface will be what? Less. ये बात समझ में आई सबको? तो जो वेपर बनने की टेंडेंसी होगी ए और बी की वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। तो यहाँ जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? पी नॉट ए। यहाँ जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? पी नॉट बी। यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा और पी बी हो जाएगा। तो पी ए विल बी लेस देन व्हाट? पी नॉट ए, एंड पी बी विल बी लेस देन व्हाट? पी नॉट बी। इट कैन बी इक्वल साइन क्यों बोला हमने? जब मान लो प्योर ए हो गया। क्लियर? पी ए इक्वल टू पी नॉट, इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए कब होगा? इफ बी इज नॉट प्रेजेंट, एंड पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इफ ए इज नॉट प्रेजेंट। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? समेशन, तो पी एस कह दिया या पी टी कह दिया डिपेंडिंग। तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये थियरी हो गई, क्योंकि सरफेस पे मिक्स करने से दोनों इंडिविजुअल लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन था वो सरफेस से ही वेपर निकलने वाली है, बल्क से वेपर नहीं निकलने वाली है। सरफेस का लिक्विड, तो वो होगा क्या? पार्टिकल्स आर इन रैंडम कोलिजन्स, पार्टिकल्स रैंडम कोलिजन कर रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होगी एज यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो पार्टिकल्स एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम हो सकती है। जिसकी बढ़ जाएगी हेलो सर। कहता था partial vapor pressure of a liquid in mixture of liquids is directly proportional to the mole fraction of that component in the liquid। सिंपल सी बात है, इस सरफेस पे जितना ए होगा उतनी टेंडेंसी होगी ए के वेपर की बनने की, जितना बी होगा उतनी टेंडेंसी होगी वेपर बी के बनने की। तो वही कहता है जितना मोल फ्रैक्शन ए का ज्यादा होगा उतनी वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा होगी? ए की होगी। तो लॉ बड़ा सिंपल है। लॉ कहता है
partial vapor pressure, that is PA, is directly proportional to of A in the liquid. The partial vapor pressure of a liquid in the mixture of a liquid is directly proportional to the mole fraction of component in liquid. तो PA proportional to X है, PV proportional to XB, इक्वल टू डाला हमने. आप बोलोगे सर P नॉट A कैसे आ गया? लेट्स अज्यूम दैट कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है. इफ XA अगर 1 होगा तो प्योर कॉम्पोनेंट हो गया, तो PA किसका इक्वल हो जाएगा? P नॉट A इक्वल. तो देयरफॉर X की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी K की वैल्यू क्या हो गई? P नॉट A. क्योंकि जब प्योर कॉम्पोनेंट होता है बेटा, जब प्योर होता है तो प्रेशर क्या है? P नॉट A. क्योंकि कुछ और है ही नहीं, सारे सरफेस पे लिक्विड क्या है? एक ही है, सारा प्रेशर एक ही होगा. तो वही यहाँ पे कहना है कि जब प्योर कॉम्पोनेंट हो जाएगा तो X की वैल्यू K की वैल्यू क्या हो जाएगी? P नॉट A हो जाएगी. तो वही यहाँ पे PA इक्वल टू. आज का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन आज की क्लास में यही है, राउल्ट्स लॉ. कहता है सिंपल, अगर आपने 2 लिक्विड का मिक्सचर 3 लिक्विड का मिक्सचर लिया तो एक पर्टिकुलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है सरफेस के ऊपर, सरफेस पे तीनों लिक्विड का वेपर अपना प्रेशर लगाएंगे. तो एक लिक्विड जो अपना प्रेशर लगा रहा है दैट इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज के प्रोपोर्शनल होगा. तो XA XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in liquid, P नॉट B प्रेशर ऑफ प्योर A and प्योर B. PS क्या हो गया? PA plus PB. PS will be equal to P नॉट A XA plus P नॉट B XB. PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मिक्सचर हो गया. न्यूमेरिकल करिए डायरेक्टली. 2 moles of liquid A is mixed with 3 moles of B. Liquid A, vapor pressure of pure and B is given to you. Calculate partial pressure of A, partial pressure of B and vapor pressure of solution. बड़ा आसान है. लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5. लिक्विड B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5. 400 क्या दिया हुआ है? P नॉट A. 600 क्या दिया हुआ है? P नॉट B. PA क्या होगा? P नॉट A XA. PB क्या होगा? P नॉट B XB. और PS क्या होगा? PA प्लस PB. कर लेंगे? हाँ सर. अब एक बात समझो. हाँ बेटा, एक मिनट. क्या बोलो कुछ बोल रहे थे? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में दम एक्चुअली. अब मुझे बताओ, जो वेपर बनेगा यहाँ जो वेपर बनेंगे मिक्सचर में, किसके वेपर बनेंगे? वेपर्स ऑफ A प्लस, बोलो. वेपर्स ऑफ B बनेंगे. अगर ये वेपर्स ऑफ A एंड वेपर्स ऑफ B है, कैन वी कंसिडर दिस गैसियस मिक्सचर ऑफ A एंड B? Can we apply Dalton's law also? Dalton's law of partial pressure? Can we apply this? और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता था? PS इक्वल टू PA प्लस PB. और क्या कहता था बताओ? PA इक्वल टू PS इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A कहता था. पर ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसका है? वेपर का है या लिक्विड का है? डाल्टन्स लॉ को तो कोई मतलब नहीं है ना लिक्विड से. डाल्टन्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो यहां जो मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, ये YA क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर मिक्सचर. बात समझे? हेलो, यहां जो XA है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड मिक्सचर.
अगर मैं सारे फॉर्मूलेस को रिलेट करूं, क्या क्या मेरे पास टेक्निकल टर्म है, देखिए क्या क्या टेक्निकल टर्म है। पी नॉट ए, पी नॉट बी, एक्स ए, एक्स बी, पी एस, वाई ए, वाई बी। स्मॉल एक्स लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स ए लिख सकते हैं। तो पी नॉट ए क्या हो गया प्योर का, एक्स ए क्या हो गया मोल फ्रैक्शन इन, बोलिए लिक्विड लिक्विड। पीएस क्या है, Total pressure. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन या मिक्सचर। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन in gaseous mixture. गैसियस मिक्सचर या वेपर मिक्सचर। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ पीए क्या है, सॉरी पीए पीए वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, बोलिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अब हम मैथमेटिकली इक्वेशन लिखते हैं। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पीए इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स है, पीबी क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, पीएस क्या होगा, दिस। वही जब डाल्टन्स लॉ लगा दूंगा तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलेगा कि टोटल वेपर प्रेशर सर दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होगा, और जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो किसके प्रेशर के बराबर होगा, पीएस इंटू वाई। पीबी इक्वल टू क्या होगा, पीएस इंटू वाई बी। एनी डाउट? No. इसी में बहुत सारे चेंजेस करके हम लोग नया इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। एज अ होमवर्क आपका छोटा सा काम रहेगा, जैसे पीएस इक्वल टू क्या लिखा, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आपको प्रूफ करना है 1 बाई पी एस इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए, वाई बी अपॉन पी नॉट बी। और हाँ, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगी, 1, और वाई ए प्लस वाई बी क्या होगी, 1, One. बिकॉज मोल फैक्टर का समेशन है। यू हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन एज अ होमवर्क, कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इक्वेशन है ही नहीं। नाउ फ्रॉम दिस वाई ए क्या है, पी ए अपॉन पी एस, एंड व्हाट इज पी ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस एक्स पी। पुट कर दिया वैल्यू, पी एस की वैल्यू पुट कर दिया, पी की वैल्यू पुट कर दिया, तो हम वाई ए भी निकाल सकते हैं। एक्स ए एक्स बी जनरली गिवन रहता है, वाई ए वाई बी निकालना होता है, या वाई ए वाई बी गिवन होगा तो एक्स एक्स बी निकालनी होगी आपको। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक्स ए को क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स बी लिख दिया और इक्वेशन जनरेट कर ली। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा, यहाँ रहने दीजिए। यहाँ तक पेज नंबर 10 तक आप डन करना। 10 तक कुछ पढ़ा ही नहीं एक्चुअली हमने ज्यादा, थोड़ा हमने आज सिमेट्री पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा, स्टेट बोर्ड सीबीएसई का डिफरेंस समझ में आया न्यूमेरिकल का, और राउल्ट्स लॉ पढ़ा। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को रिलेट करना सीखा। अगेन आई विल रिवाइज द सेम कंटेंट जो अभी पढ़ा हमने, ये पूरा डिस्कशन फिर से करूंगा, उसमें थोड़ा चेंजेस और भी करूंगा, फिर आपको और थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और फास्ट सॉल्विंग का टेक्निक बताऊंगा। इतना रखते हैं लोग। सॉरी, हाँ बेटा बोलो। वो हेनरीज लॉ वाला प्रेशर मतलब कौन सा है इसमें से? हेनरीज लॉ वाला Pressure. प्रेशर ही नहीं, गैस अलग है लिक्विड अलग है, ये सेम लिक्विड का प्रेशर वेपर बन रहा है ना। हेनरीज लॉ में हमने Okay, कोई गैस हाँ। को लिक्विड, हाँ समझे इसमें लिक्विड बी का, लिक्विड का ही अपना वेपर जनरेट हो रहा है, लिक्विड बी का जनरेट हो रहा है। हाँ हाँ बाद में बताऊंगा हाँ, रिलेशन और राउल्ट्स लॉ में भी।
उसमें गैस और लिक्विड को मिक्स किया ना। मिक्स किया, इसमें दो लिक्विड को मिक्स किया, अलग अलग लिक्विड से वेपर जनरेट हो रहे हैं सरफेस से, सरफेस में लिक्विड पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं और ओवरकम कर जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स को और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को एवापोरेशन भी कहते हैं। विल टेल यू एवरीथिंग स्लोली, डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। आज की क्लास का मैं आपको बोलूं तो आपको एटलीस्ट ये तो पूरा सेक्शन दिमाग में सेट रहना चाहिए इन कल के लिए, कल के क्लास के लिए एटलीस्ट। और हेनरीज लॉ का ये सेट रहना चाहिए, न्यूमेरिकल इसी से बनने वाले, ठीक है ना? हाँ